بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنگل کا وہ کون سا پراسرار جاندار ہے جو اپنی بے پناہ مردانہ طاقت اور پھرتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن شکاری اس شکار گوشت کے لیے نہیں بلکہ اس کے جسم کے اندر چھپے ایک خاص حصے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ایسا نایاب جاندار جس کی طاقت کی مثالیں پرانی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آج ہم مردانہ کمزوری کے علاج کے لیے کسی عام جڑی بوٹی کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی پوشیدہ چیز کا راز کھولنے جا رہے ہیں جس کا صرف ایک دانہ اگر آپ نے نیم گرم دودھ میں نچوڑ کر پی لیا تو آپ کی رگ رگ میں وہ طوفانی طاقت دوڑے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، اس نسخے کا ایک خفیہ حصہ ایسا بھی ہے جس کے بغیر یہ نسخہ بالکل ادھورا ہے، اور اگر وہ غلطی کر دی تو اثر صفر ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ وہ راز ہم اینڈ میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طب یونانی اور حکمت کے مایہ ناز ماہر حکیم صاحب۔ آج کل نوجوانوں اور شادی شدہ مردوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے۔ لوگ مہنگی دوائیاں کھا کر تھک چکے ہیں۔ کیا واقعی کوئی ایسا علاج ہے جو مستقل فائدہ دے؟ دیکھو بھائی، آج کل کی خوراکیں اور ہماری بری عادات مرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ لوگ عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو دل اور گردوں کو تباہ کرتی ہیں، لیکن آج جو نسخہ میں لایا ہوں وہ نسلوں کا راز ہے۔ اگر آپ یہ نسخہ میرے بتائے گئے طریقے سے استعمال کر لو گے تو زندگی بھر مجھے اور میری نسلوں کو دواؤں میں ہمیشہ کے لیے یاد کرو گے۔ یہ کوئی معمولی نسخہ نہیں۔ حکیم صاحب، آپ نے شروع میں جس دانے کا ذکر کیا وہ کیا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے؟ جی بالکل، اس نسخے کی جان وہ ایک خاص چیز ہے جس کا صرف ایک دانہ آپ نے نیم گرم دودھ میں اچھے طریقے سے نچوڑ کر پی لینا ہے۔ جیسے ہی وہ دودھ آپ کے جسم میں جائے گا، طاقت کا ایک نیا سمندر پیدار ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو حکیم صاحب، آج کی ویڈیو میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتانے والے ہیں؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں میں اپنے ناظرین کو اس معجزاتی نسخے کی مکمل تیاری کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کے صحیح استعمال کا وقت طریقہ بھی تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ لیکن ایک بات میں پہلے ہی واضح کر دوں، اس پورے نسخے کے اینڈ میں ایک ایسی خاص اور اہم چیز بتاؤں گا جس کے بغیر یہ پورا نسخہ بالکل ادھورا ہے۔ اگر ناظرین ویڈیو کا وہ آخری حصہ مس کر دیا اور وہ چیز شامل نہ کی تو یہ نسخہ اپنا اثر بالکل نہیں کرے گا اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ایک ایک سینکڑ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے اس نسخے کے فوائد جان لیتے ہیں۔ یہ جسم میں مردانہ ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو قدرتی طور پر تیزی سے بڑھاتا ہے، رگوں اور پٹھوں کی کمزوری کو جڑ سے ختم کر کے ان میں فولادی سختی پیدا کرتا ہے۔ یہ جسم کے اہم اعضاء کی طرف خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ ایسے مرد جو ہر وقت تھکن اور سستی کا شکار رہتے ہیں، ان کو فوری بے پناہ توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کو مضبوط بناتا ہے جس سے ذہنی تناؤ، مردانہ کمزوری کا خوف ختم ہوتا ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے ازواجی تعلقات کا دورانیہ قدرتی طور پر طویل ہو جاتا ہے۔ یہ جسم کی مدافعت کو بڑھاتا ہے تاکہ کمزوری دوبارہ کبھی نزدیک نہ آ سکے۔ کمر کے درد، گھٹنوں کی تکلیف اور مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہونے والے
जिस्मानी दर्द को दूर करता है। ये बूढ़े मर्दों के खुलियात को भी नया जोश और नई जिंदगी बख्शता है। इसके इस्तेमाल से मादा मनविया गाढ़ा ताकतवर होता है, जिससे औलाद के जरासीम बेहतर होते हैं। यह दिल और दिमाग को ताकत देता है, जिससे मर्दाना सलाहियतों में बेपना इजाफा होता है। यह हड्डियों को कैल्शियम फराहम करता है और मर्द को बुढ़ापे में भी जवान रखता है। नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि मैं इस मौजूदाती चीज का नाम बताऊं, जिसका एक दाना आपने दूध में निचोड़ना है। वो चीज है चलगोजा। चलगोजे के मर्दाना ताकत के लिए फवायद ये हैं। चलगोजे का ये एक दाना अपने अंदर जिंक और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा खजाना रखता है, जो मर्दानगी के लिए लाजम है। यह कुदरती तौर पर बा की कुव्वत को चंद दिनों में दुगना कर देता है। इसके अंदर मौजूद खास कुदरती तेल पट्ठों को कभी भी ढीला नहीं होने देता। यह खून की नालियों को खोलता है, जिससे मर्दाना अज़ा को भरपूर ताकत मिलती है। यह मर्दाना जरासीम की तादाद और इनकी हरकत की रफ्तार को बढ़ाता है। यह एक दाना सर्दी के असरात को ख़त्म करके जिस्म में मतलूबा मर्दानगी गरमाइश पैदा करता है। यह दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, जिससे जमा के दौरान सांस नहीं फूलती। यह दिमागी खुश्की को दूर करता है और मूड को खुशगवार बनाकर मर्दाना जोश उभारता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा होने से रोकता है। यह जिगर और मैदे को ताकत देता है, ताकि खाई पी खुराक जज़ू बदन बने। यह फौरी तौर पर सुस्ती और काहली का खात्मा करके जिस्म को चुस्त बनाता है। दूध के साथ मिलकर यह एक दाना एक ऐसा अमृत बन जाता है, जिसका कोई सानी नहीं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पाव खालिस और ताज़ा भैंस का दूध लें। दूध को मिट्टी के बर्तन या किसी साफ पैन में डालकर हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें। अब इसमें कोई दूसरी जड़ी बूटी नहीं डालनी, बल्कि दूध को कम से कम 3 उबाल आने तक अच्छी तरह पकने दें। जब दूध अच्छी तरह पक जाए तो इसे चूल्हे से उतार कर हल्का नीम गर्म होने के लिए रख दें। दूसरी तरफ आपने चलगोजे का वो एक खास दाना लेना है और इसे हल्का सा हमाम दस्ते से कुचल लेना है। इस कुचले हुए दाने का पूरा जोहर या अरक निकालने के लिए इसे एक बारीक मलमल के कपड़े में रखें। अब इस नीम गर्म दूध के गिलास में इस मलमल के कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ें, ताकि इस एक दाने का पूरा असर दूध में चला जाए। आप चाहें तो इस निचोड़े हुए दाने के गूदे को भी दूध के अंदर ही शामिल कर सकते हैं। इसके बाद नुस्खे में मिठास के लिए 1 चम्मच खालिस छोटी मक्खी का शहद शामिल करें। चम्मच की मदद से इस पूरे मरकब को कम से कम 2 मिनट तक अच्छी तरह हिलाएं। याद रहे कि दूध ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना शहद और इस दाने का असर खत्म हो जाएगा। इस तैयारशुदा दूध को 5 मिनट के लिए ढांप कर रख दें, ताकि तमाम अज्जा यकजा हो जाएं। 5 मिनट बाद दूध की सतह पर एक हल्की सी तय या मलाई आ जाएगी। इस मलाई को चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। यही असल ताकत का मरकज है। बर्तन का इंतखाब हमेशा शीशे या मिट्टी का करें। प्लास्टिक का बर्तन हरगज इस्तेमाल ना करें। नुस्खा तैयार करते वक्त आपका जहन परसकून और साफ होना चाहिए। यह मरकब आप देखने में हल्का सा सुनहरा या जर्दी माइल नजर आएगा। अब आपका यह शाही नुस्खा और मौजूदाती नुस्खा पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका सुन लें। इस नुस्खे को आपने रात का खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। दूध पीने का बेहतरीन वक्त सोने से ठीक आधा घंटा पहले का है।
दूध बिल्कुल नरम नीम गर्म होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा। इसे एक ही सांस में नहीं पीना बल्कि घूंट घूंट कर आराम से पीना है। इस नुस्खे को हफ्ते में सिर्फ 3 बार, एक दिन छोड़कर एक दिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के दौरान खट्टी तली हुई और तेज मिर्च मसाले वाली चीजों से मुकम्मल परहेज करें। नौजवान लड़के जिनकी शादी नहीं हुई वो इसे महीने में सिर्फ 2 या 3 बार ही इस्तेमाल करें। शादीशुदा हजरात इसे मुसलसल 21 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। नाजरीन, अब आते हैं इस सबसे अहम राज की तरफ जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, जिसके बगैर ये नुस्खा अधूरा है और असर नहीं करेगा। वो चीज है स्पगोल का छिलका और पानी। अक्सर लोग जब ये गर्म और ताकतवर नुस्खा खाते हैं तो इनका मैदा और जिगर इसकी गरमाइश को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नुस्खा हजम होने की बजाय उल्टा नुकसान या गर्मी कर देता है और असर सिफर हो जाता है। इसका हल यह है कि इस ताकतवर दूध को पीने से ठीक 1 घंटा पहले आपने गिलास सादा पानी में 1 चम्मच स्पगोल का छिलका भिगो कर रख देना है और इसे पी लेना है। यह पानी आपके मैदे और जिगर की गर्मी को साफ करके इसे इस काबिल बनाएगा कि जब आप इसे एक दाने वाला दूध पिएंगे तो मैदा इसकी एक एक बूंद को हजम करके सीधा आपकी रगों तक पहुंचाएगा। अगर आपने यह स्पगोल वाला पानी ना पिया तो नुस्खा अंदर जाकर हजम ही नहीं होगा और ताकत जाया हो जाएगी। नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ आपकी आम मालूमात आगाही के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई पहले से संगीन बीमारी, दिल का आर्जा है या ब्लड प्रेशर का कोई शदीद मसला है तो अपने मालिज या डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की गलत इस्तेमाल या बगैर मशवरे के नुकसान के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक या किस बीमारी के इलाज पर चाहिए, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।